In the morning he just used to send me good morning, at night he used to send me good night. And तो उसने गूगल से ही स्क्रीनशॉट करके पोस्ट कर दिया था बाय सेइंग कि उसने खुद ओके. So I found it so desperate. Tone was like कि we are doing something illegal. You know what's illegal for? First of all, you don't cross your boundaries and you. Hey, welcome to another story time video. I'm recording after such a long time. I'm sorry if you are hearing any kind of background noises because I tried my best to control it as much as I can, but I have a pet dog, I have a washing machine, I have an AC, and they all love to make noises at the same time. But I will try my best कि मैं editing के time जितनी background noises हटा पाऊँ मैं हटा. So this incident is like around the time like 3 years back, okay? And like when I was in 9th 10th grade or 11th grade, I don't clearly remember, but it's of the time when I used to have a public Instagram account, okay? Back then I used to love painting and used to paint a lot. Like right now also I love to paint and it's kind of my hobby. But back then मैं और भी ज़्यादा पेंटिंग्स करती थी और मैं उसे पोस्ट भी करती थी और मेरा अकाउंट पब्लिक था, तो एनी वन कुड फॉलो मी एंड एनी वन कुड फॉलो वट एंड एनी वन कुड सी वट एवर आई पोस्टेड, ओके. सो लाइक मैंने कोई तो स्टोरी पोस्ट की थी या पोस्ट डाला था मैंने, एंड आई गॉट ए DM फ्रॉम अ गाय सेइंग दैट हे वी गो टू द सेम स्कूल एंड आई जस्ट लाइक stumbled upon your account and I really like how do you paint and stuffs. तो ये सारी चीज़ें उसने मेरे को बोली एंड आई फॉलोड हिम बैक बिकॉज आई ऑल्सो हैड अ मेमोरी ऑफ हिम ऑफ सीइंग हिम एट स्कूल. सो आई जस्ट फॉलोड हिम बैक एंड उसके भी प्रोफाइल पे काफ़ी पेंटिंग्स और स्केचेस थी विच वर गुड, विच वर इंसेनली गुड. लाइक वो उस टाइप के जो वीडियोस नहीं आते इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पे जहाँ पे लोग मतलब किसी भी सेलिब्रिटी को एग्जैक्ट वैसे उनका स्केच कर देते हैं. सो यूज टू स्केच लाइक दैट गुड, ओके. So I am not very much like of a sketcher. I love to paint, so yeah, I'm just good at like watercolor paintings and normal painting. Like I could not make a sketch which resembles a real life person with such insanely good details. And I feel like you can't if you like don't teach yourselves and don't have experience and don't practice a lot, you can't, okay. So he used to paint such good, he used to his sketches used to look that good, okay. And like when he followed me, तो उस दिन we talked a bit. तो he was just telling me कि उसको कैसे sketches वगैरह करना पसंद है, उसे कैसे paintings वगैरह करना पसंद है and stuff like that. So I'm like yeah okay, that's it. And then he started messaging me a lot. Like it's not like he used to tell me, he used to say hey how are you. He used to just like in the morning he just used to send me good morning, at night he used to send me good night. And like अगर कोई भी फेस्टिवल होता था so he used to be like happy Holi, happy Diwali, merry Christmas or happy Guru Purnima. No, he didn't wish me Guru Purnima. I'm just telling you all like how he used to text me. Okay, so anyway, and I used to find it kind of weird क्योंकि हमने कभी स्कूल में बात नहीं की. हमने पूरे लाइफ टाइम में एक बार कॉन्वर्जेशन की है, वो भी ओवर द टेक्स्ट. एंड आफ्टर दैट शॉर्ट मेयर कॉन्वर्जेशन ऑफ 30 minutes यू आर विलिंग टू एवरी डे टेक आउट टाइम from your busy schedule and text me good morning, good night every day, every night. So I found it kind of weird, okay. एंड देन उसके बाद उसने काफ़ी ज़्यादा रिसेंटली एक स्केच पोस्ट किया था एंड वो स्केच की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी. My mother called me, I'm so sorry. So yeah, what I was telling, हाँ, तो उसने एक उसने स्टोरी पोस्ट की थी या नहीं, उसने एक पोस्ट डाला था ऑफ अ स्केच एंड इट वाज लाइक इंसेनली गुड. एंड वो सिर्फ क्वालिटी मतलब दिखने में नहीं अच्छा था, जो कैमरे की क्वालिटी थी वो भी बहुत अच्छी थी. लाइक ऐसे, और वो एकदम ऐसे डिज़ाइन में लाइक इफ़ देर आर पीस ऑफ पेपर विद अ स्केच ओवर इट, उसके ऊपर पेंसिल्स रखी हुई हैं और पेंसिल का भी शेड आ रहा है. एंड इट वॉज किसी तो सेलिब्रिटी की स्केच थी एंड इट वॉज लाइक वेरी वेरी प्रिटी, ओके.
तो उसके बाद फिर मैंने उसके ऊपर से बहुत ही ज़्यादा वो कॉम्प्लीमेंट्स दे कि ये तो बहुत ही ज़्यादा इंसेनली गुड अमाउंट ऑफ स्केचेस यू ड्रॉ, यू शुड लाइक keep it as a profession or something. And I don't know what came into my mind. I just like मेरे को नहीं पता क्यों मैंने ऐसा किया, मेरे दिमाग में क्या आया. I went to the Google and I search कि वो जो उसने सेलिब्रिटी की स्केच डाली थी, मैंने उस सेलिब्रिटी का नाम और उसके बाद फिर स्केच ऐसे करके सर्च किया. तो फॉर एग्जांपल अगर उसने किसकी टेलर स्विफ्ट का स्केच बनाया होता तो मैंने सर्च किया टेलर स्विफ्ट स्केच, एंड उसमें से स्टार्टिंग में गूगल पे जो 4 स्केचेस दिखा रहे थे उसमें से वन ऑफ द स्केचेस वही था, एग्जैक्ट सेम तरीके से, एग्जैक्ट वो पेंसिल्स भी वैसी ही रखी हैं जो उसने पोस्ट किया. एंड फिर उसके बाद उसने जितने भी स्केचेस बनाए थे जिन जिन सेलिब्रिटीज़ के, वो सारे मैंने सर्च किए एंड वो सारे फ़ोटोज़ उसने गूगल से ही स्क्रीनशॉट करके पोस्ट कर दिया था बाय सेइंग कि उसने खुद से बनाया है. एंड इट वॉज सो वियर्ड. लाइक या तो आपको स्केच आता है तब पोस्ट करो, नो प्रॉब्लम, या अगर आप किसी और के वो स्केचेस को पोस्ट करो, चलो उसमें भी कोई बात नहीं, बट आप मेंशन तो करते हो ना कि कौन रियल आर्टिस्ट एंड स्टफ्स लाइक दैट, एंड टू जस्ट लाइक पोस्ट समथिंग विच यू हैवंट फाउंड इट सो डेस्परेट. ओके कि भाई आपको स्केच करने नहीं आता और समथिंग, सो यू डोंट हैव टू. ओके लाइक ऐसा किसी ने कोई रूल नहीं बनाया कि यू हैव टू पोस्ट समथिंग ऑनलाइन, यू हैव टू पोस्ट स्केचेस और समथिंग वट एवर. तो मेरे को नहीं पता कि वो ऐसा क्यों करता था. एंड ऐसा भी नहीं कि अगर कोई उससे बोल रहा है कि वाह यार तुमने कितनी अच्छी स्केच बनाई है तो कह दे कि हाँ ये मेरी नहीं है, मैं तो गूगल से ली है, हाँ करके वो फुल ऑन एक्सेप्ट कर लेता था. न्यूज़ लाइक यार थैंक यू सो मच एंड स्टफ लाइक दैट. सो तो फिर मैं ऐसे मतलब 1-2 दिन के बाद ही जस्ट टेक्सटेड मी अगेन हे हाय ऐसे करके, एंड आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम. सो इन द कॉन्वर्जेशन आई स्लेड in a very like you know in a very light hearted tone or in a very friendly tone, like why do you like I said something like कि your sketches look like तुमने गूगल से उठा के डाल दिया है, हाँ ऐसे करके, बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड टू नो कि विल ही एक्सेप्ट इट और नॉट. बट ही वेंट सो सीरियस. ही वॉज लाइक कि वाई आर यू सेइंग लाइक दिस, लाइक ही वॉज लाइक आई एम ओवर रिएक्टिंग. ही सेड लाइक ये मैंने खुद से बनाया, व्हाट डू यू मीन. तो मैंने कहा नहीं तुमने खुद से बनाया, आई एम जस्ट सेइंग कि अगर गूगल पे इस सेलिब्रिटी का नाम डालो तो एग्जैक्ट ऐसी सेम स्केचेस आ जाते. यू आर जस्ट वे टू गुड इन कॉपिंग स्टफ्स एंड इवन लाइक यू आर जस्ट डिसरिस्पेक्टिंग माई आर्ट, यू आर जस्ट डिसरिस्पेक्टिंग माई स्केचेस, ये मैंने खुद से बनाया, हाउ कुड यू. एंड आई वाज लाइक ओके आई एम सॉरी वट एवर. And उसके next day he deleted all those sketches. Really? Anyway, and I just didn't give it lot of क्या कहते हैं attention, because when you are a teenager you do things just to have attention of other people, which makes you look pathetic sometimes. So yeah, after that, after like few days, we again started having these normal conversation, and he again started texting me those good mornings and good nights each and every day and night and stuff like that. Okay, now if I consider someone like you're like a brother to me or you're like a sister to me, okay, so what I will do, I will be like, one day we are talking, I just casually mentions, oh you're such like a brother to me, I like you a lot as a brother, I could rely on you like a brother and stuff like that. And then I will forget about it, like not forget in a way, I mean I would mention it again and again after each and every conversations I will have with you, right? But he used to do this, okay? Like first of all, he once messaged me, he once texted me, okay, you're like a sister to me, and I was like yeah okay thanks, okay, and that's it. And उसके बाद whenever he used to have conversations with me, वो हर बार ये चीज़ मेंशन करता था कि यार तू तो मेरी बहन जैसी है, यू आर लाइक अ सिस्टर टू मी, यू आर हे सिस, गुड मॉर्निंग सिस, गुड नाइट सिस, आई डोंट नो क्या था, बट आफ्टर ईच एंड एवरी कॉन्वर्जेशंस ही यूज्ड टू मेंशन द फैक्ट दैट आई एम लाइक अ सिस्टर टू हिम, विच वॉज वेरी वियर्ड. कि आपने एक बार मेंशन कर दिया ठीक है, आपने 500 साल के बाद फिर से मेंशन कर दिया ठीक है,
हर दिन हम जब भी बात कर रहे हैं, ये बार बार ये चीज़ मेंशन करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। मैं समझ गई कि आप मुझे अपनी बहन मानते हो, आपको कुछ प्रूव नहीं करना है, ठीक है। वन डे ही जस्ट टेक्सटेड मी सेइंग स्टफ्स लाइक देयर इज समवन जिससे हमारे बारे में पता चल गया है, ऐसे करके। एंड आई वाज लाइक व्हाट डू मीन हमारे बारे में पता चल गया, हम ऐसा। एंड यू नो द वे ही सेड दैट सेंटेंस, his tone was like कि we are doing something illegal. You know what's illegal for teenagers to do in India, right? So he was like we are doing something illegal that other people should not know. And दूसरे लोगों को हमारे बारे में पता चल गया, दूसरे लोगों को पता चल गया हम बात करते, अब तो लोग हमारे बारे में अफवाहें फैलाएंगे, अब तो लोगों को लगेगा we are dating, you know. That was his tone, right? So I said कि it's okay, अगर किसी को पता भी चल गया, it's not that big of a deal. And he was like कि नहीं यार, मेरे को ना NGL पे लिंक आई थी. If you don't know, तो NGL is an app जिससे आप लिंक जनरेट कर सकते हो and people could send you questions anonymously. तो कह रहा था कि मेरे को किसी ने उस पर मैसेज किया था कि हाउ डू यू नो दृष्टि, व्हाट्स योर रिलेशन विद दृष्टि. एंड फिर इनफैक्ट उसने इतने पे भी वो नहीं रुका, उसने मेरे को स्क्रीनशॉट भी भेजी उन एनोनिमस मैसेजेस की. एंड the way he used to call me Drishti, that guy, let's call him X, the way that X used to call me Drishti, like वो जो spelling mistake जो करता था, मेरा नाम ठीक से नहीं लिखता था, वो कुछ अलग ही spelling बना के वो लिखता था, वो सही मान के बैठा था, वो exact same spelling के साथ कोई से और question पूछ रहा था. Are you sure sir कि किसी और को हमारे बारे में पता चल गया है? So yeah, that was it. And मैंने फिर उसको फिर कहा ठीक है छोड़ो, अगर मैं इसे फिर से कन्फ्रंट करूँगी सो ही विल गो ऑल लाइक कि यू आर अटैकिंग मी, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, व्हाट डू यू मीन बाय दैट एंड स्टफ्स लाइक दैट. मेरे को पता था झूठ बोल रहा है, सो आई वाज जस्ट लाइक ठीक है बोलो जितना झूठ बोला है. तो मैं कहा हाँ ठीक है, पता चल गया किसी को, क्या ही करना है, छोड़ो. ओके. एंड इसके बाद फिर वन डे लाइक वी वर टॉकिंग एंड इंस्टाग्राम पे आप थीम चेंज कर सकते हो अपने जो ने हमारा जो मैसेज था, हमारा जो DM था, उसका उसने थीम चेंज कर दिया. सो आई सेड सो क्यूट बिकॉज इट वाज अ वेरी क्यूट थीम. सो इट वाज लाइक, सो ही टुक अ पॉज फॉर लाइक 5 minutes एंड देन ही वाज लाइक डू यू मीन आई एम क्यूट? एंड आई वाज लाइक I meant that the theme is cute. And he's like, oh yeah, obviously, ha ha ha, I was just saying it for fun, you know. Either he was actually very much sure कि मैंने उसे क्यूट बुलाया, और either he was trying to flirt with me, but we will never know. Cause उसके पास मुझे लग नहीं रहा था कि 2 ब्रेन सेल्स से ज़्यादा ब्रेन सेल्स है. एक तो मैं अपने स्टोरी टाइम से इतनी अच्छी अंग्रेज़ी बुलवा रही हूँ, बल्कि ना ही वो अंग्रेज़ी अच्छे से बोलता था, ना ही वो हिंदी अच्छे से बोलता था, और मैसेजेस पे तो उसके पास अलग ही डिक्शनरी थी. सो या ही शुड बी, इफ़ ही वॉचेस दिस स्टोरी टाइम, ही शुड बी impressed, he should be proud कि मैंने उसके साथ क्या किया है, and he should work on his grammar and language. Anyways, so फिर ये सारी चीज़ें हुई. फिर उसके बाद ना लाइक ही यूज़ टू, और फिर मैं इंस्टाग्राम वगैरह ज़्यादा नहीं चलाती थी, अब चला लेती हूँ, नहीं चलाना चाहिए. तो मैं पहले ज़्यादा नहीं चलाती थी, तो मैं एकदम रात में मैंने एकदम टाइम बना के रखा था कि मैं बस रात में 1 घंटे के लिए देखूँगी, मुझे जितने भी मैसेजेस वगैरह आए होंगे आई वुड रिप्लाई टू इट. एंड ऐसे उसके जो गुड मॉर्निंग्स गुड नाइट्स थे वो बढ़ने लगे. अब वो हो गया था आज मैंने ये खाया, आज मैंने ये किया, आज ये हो गया, आज वो हो गया. और मैं रात में आती थी तो किसी ने मुझे मैसेज किया हो या ना किया हो, उसके मेरे पास इतने रील्स आती थी, मैसेजेस आते थे, और हर 1 घंटे पे, कभी इवनिंग में, कभी आफ्टरनून में. तो उसके बाद फिर मैंने उसे म्यूट पे रख दिया था. मैं कहा अगर मैं 1-2 दिन उसके मैसेजेस को म्यूट कर दूँगी, रिप्लाई नहीं करूँगी, तो फिर वो समझ जाएगा दैट आई डोंट वांट टू टॉक टू हिम, या फिर मेरे को इतनी ज़्यादा तो बात नहीं करनी है. कभी कभी कॉन्वर्जेशंस कर लिया, इट्स फाइन, बट मुझे रोज़ 1 घंटा जो मैं निकालती हूँ अपना इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल करने पे, वो मुझे 1 घंटा से बात करने पे नहीं निकालती. बट वो नहीं समझता था. वो मैं आती थी, वो तब भी मैसेज कर रहा है. वॉज लाइक ही वॉज 24/7 ऑनलाइन, कि जब मैं मैसेज कर दूँगी उसका मैसेज आएगा ही 5 सेकेंड. ओके. सो ये सारी चीज़ें हुए 1 साल तो हो ही गया होगा.
ओके। और मैं बीच में अपना अकाउंट भी डीएक्टिवेट करती रहती थी, मैं अभी भी करती हूँ। सो इट वॉज़ नॉट अ बिग डील फॉर मी टू टॉक टू हिम और समथिंग, बिकॉज अभी तक आई वॉज ओकेश। ठीक है। उसके बाद फिर देन क्या हुआ, उसके बाद लाइक आफ्टर लाइक फ्यू मंथ्स और समथिंग, उसका मेरे पास ऐसे ही मैसेज आया, हाय हेलो हाउ आर यू और समथिंग। तो फिर मैंने उससे बोला कि या आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू। एंड ही जस्ट गॉट एंग्री, ही वॉज लाइक कि तुम मुझसे बात नहीं करती हो, तुम्हें क्या हो गया है, तुम ऐसे करती हो, तुम वैसे करती हो। ही वॉज सो कॉन्फिडेंट अबाउट इट। ही वॉज लाइक कि लाइक कोई बाउंड्री का सेंस ही नहीं है कि उसका मेरे ऊपर इतना ज़्यादा हक है कि वो मुझे डांट सकता है, या फिर वो मेरे से कंप्लेन कर सकता है कि हाउ डेयर आई, कि मैंने उससे बात नहीं की, कि मैंने उसे सीन पे छोड़ दिया और समथिंग लाइक दैट। तो मैंने उसे बोला, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट क्रॉस योर बाउंड्रीज, यू कांट टॉक टू माई Okay, so I said to him कि first of all, you don't cross your boundaries and you can't talk to me like this. You are being way too rude. You are being way too angry, and I won't accept it. Okay, and उसके बाद मैंने लिखा था, I'm going to just block you now. You don't deserve my time and my energy. And I know what you try to do by keep calling me sister, you are like a sister to me, hey sis and stuff like that. And then on the other hand, you try to flirt with me and stuff like that. So he was like, you know what, I am so sorry, मेरा आज का मूड इतना ज़्यादा ख़राब है। मेरा एक दोस्त है, वो मेरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा दोस्त है, वो मेरे बचपन का दोस्त है। एंड उसके पैरों पे ना चोट लग गई है, उसके पैरों पे एक्सीडेंट हो गया है, वो बाइक से गिर गया था उसका उसने मेरे को ऐसे रात में 10 बजे बताया, लाइक ही वॉज टेलिंग मी कि मेरे दोस्त ने मुझे रात में ऐसे 10 बजे बताया कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में है। एंड आई गॉट सो एंक्शियस, मेरे को इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था। मैं तो अपनी बाइक लेके 100 की स्पीड पे मैं हॉस्पिटल तक पहुंचा। मैं ऑलमोस्ट गिरने ही वाला था बाइक से, बट समहाउ आई रीच्ड। एंड लाइक उसके पैरों पे बहुत ज़्यादा चोट आ गई है, स्टिचेस हुए हैं। आई डोंट नो, आई फील लाइक मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि कहीं वो मर ना जाए, क्योंकि वो मेरे बचपन का दोस्त है, हम दोनों एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं, स्टफ लाइक दैट। सो आई वाज लाइक या ओके, maybe that's why he got angry and said cause an empath I am. So I was like कि oh okay, it's like कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम देयर फॉर यू, इफ़ यू फील लाइक टॉकिंग वी कैन टॉक, एंड आई एम रियली सॉरी, मेरे को पता नहीं था सारी चीज़ें हो गई हैं, एवरी वन हैव देयर वे टू एक्सप्रेस हाउ दे फील, बट हे यू शुड नॉट क्रॉस बाउंड्रीज एंड स्टफ्स लाइक या आई एम सो सॉरी। एंड वी टॉक फॉर अ वाइल एंड ही वॉज लाइक कि हाँ वो मेरे बचपन का दोस्त है, हम लोग ऐसा करते थे, हम लोग वैसा करते थे, उसके पैरों पे चोट आ गई, बट डॉक्टर सेड कि इट्स फाइन। बट यू नो व्हाट, मैं तो इतना ज़्यादा डर गया था, मैं रास्ते में जा रहा था, ऐसे मेरे सामने से ऐसे ट्रक जा रही थी और मेरा एक्सीडेंट होने वाला था। एंड आई वाज लाइक ओ नो, यू शुड नॉट ड्राइव दैट लाइक दैट एंड स्टफ्स लाइक दैट। एंड उसके बाद लाइक फ्यू मिनट्स ही सेंट मी अ फोटो अगेन अपने दोस्त के एक्सीडेंट की। ठीक है, लाइक उसने मेरे को बेसिकली एक पैरों की फ़ोटो भेजी थी जिसके ऊपर स्टिचेस लगे हुए थे, इंजर्ड पैर की, मतलब जिसके ऊपर ऑपरेशन हुआ हो, स्टिचेस वगैरह लगे हों। एंड ही वाज लाइक कि हाँ सी उसको इतने चोट आए हैं, नाउ आई थिंक ही वुड बी ओके नाउ। एंड अब तो एंड यू नो वॉट, आई फील लाइक कि हाँ एक्सीडेंट की बात है, ही वुड नॉट बी लाइंग अबाउट इट, और वो अगर झूठ भी बोल रहा है सो व्हाट कैन आई डू, मेरे को कैसे ही पता चलेगा। बट जब उसने फ़ोटो भेजी है, वाज लाइक कि ये आदमी इतना ज़्यादा गंवार है, इतना ज़्यादा बुद्धू है, इतना ज़्यादा इसके अंदर दिमाग की कमी है कि इसे जो गूगल पे से फर्स्ट 2 फ़ोटोज़ में, फर्स्ट 5 फ़ोटोज़ में जो फ़ोटो मिलती है वो आके वो लगा देता है। उसे मेरे नाम की गलत स्पेलिंग पता है, वो बोलता है या नहीं पता, आई डोंट नो व्हाई, पर ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया मेरे नाम की वही स्पेलिंग जानती है। सो एक तो वो झूठ बोल रहा है, वो भी इतने कम दिमाग के साथ झूठ बोल रहा है, कम दिमाग के साथ भी नहीं, बद दिमाग के साथ वो झूठ बोल रहा है। तो मैंने कहा मुझे ये वाली फ़ोटो भी सर्च करनी ही पड़ेगी, तो मैं गूगल पे जाके सर्च किया कि फीट एक्सीडेंट या फिर फीट स्टिचेस ऐसे करके, एंड गेस व्हाट, फर्स्ट 5 फ़ोटोज़ में से उसकी फ़ोटो थी। बट मैंने कुछ नहीं बोला, मैं कहा आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, आई डोंट वांट टू एक्यूज़ हिम ऑफ एनीथिंग, ऑफ समथिंग विच ही डिड, बिकॉज
बेसिकली आई डोंट केयर कि वो झूठ बोल रहा है क्या कर रहा है, बट आई वाज लाइक कि आई कांट टॉक टू हिम नाउ, अब बहुत हो गया, अब इसने हदें पार कर दी हैं झूठ बोलने की। इसने ये डायरेक्ट आया था मेरे ऊपर गुस्सा करने, ऐसे लगा था आई वुड बी लाइक आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मैं तुमसे बात नहीं करती तो तुम्हें इतना ज़्यादा बुरा लगता है। बट उसने नोटिस किया कि उसके ऊपर बैक फायर हो गया, कि मैंने तो डायरेक्ट बोल दिया कि मैं तो तुम्हें ब्लॉक ही कर दूँगी, यू कांट टॉक टू मी लाइक दिस। तो जस्ट टू cover up what he did to act sigma male alpha whatever, इसने ये अलग से कहानी बना दी कि इसका कोई चाइल्डहुड का दोस्त है जिसकी एक्सीडेंट हो गई है एंड समथिंग लाइक दिस। आई वाज लाइक यू नो व्हाट, गो टू हेल। तो मैंने उसे ब्लॉक कर दिया बिना कुछ बोले। एंड द नेक्स्ट डे वो मेरे दोस्तों को मैसेज कर रहा था, मेरी एक फ्रेंड का मैसेज आता है, शी वॉज टेलिंग में कि ये कह रहा है कि मैं अनब्लॉक कर दूँ, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देगा। देयर इज़ नथिंग टू एक्सप्लेन टू मी स्वीट हार्ट एंड आई डोंट वांट एनी एक्सप्लेनेशन, ठीक है। मुझे नहीं जानना, यू डोंट एग्जिस्ट टू मी, आई डोंट केयर अबाउट यू, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तुम बस, मैं आई यूज़ टू जस्ट टॉक टू यू कॉज यू यूज़ टू टेक्स्ट मी, मैंने कभी फर्स्ट टेक्स्ट नहीं किया, मैंने कभी तुम्हें कोई आइडिया नहीं दिया एंड I don't care at all. You gave me nice story time content, so whatever. And yeah, that's it. And yeah, उसके बाद फिर उसने एक और दोस्त को मैसेज किया था एंड वाज लाइक कि यू आर दी ओनली वन जो मेरी और उसकी बात करा सकता है। एंड यू नो व्हाट, कि एक काम करो कि मुझे और उसे, हम दोनों के साथ मिलके एक ग्रुप बना लो और मैं उस ग्रुप पे सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँगा एंड स्टफ्स लाइक दैट। सो या, एंड उसके बाद फिर स्कूल पे भी उसने मेरे बारे में काफ़ी लोगों से पूछताछ भी की थी, पता नहीं व्हाट ही वाज ट्राइंग टू डू। सो या, दैट वाज इट for today's video, for today's story time. I hope you like it, love it, subscribe to my YouTube channel, and I hope I didn't sound boring, and stay away from guys who lies a lot, who lies at all, and actually stay away from guys. They are not good for your health, for your mental health, for physical health, for any health. Stay away from them. But yeah, that was it for today's video. So yeah, bye bye. That sounded kind of cliche, corny. Bye bye. I don't know how to make intros and outros. Bye.